हाँ, मैं ये कह रहा था कि by which the plant pathogen can penetrate directly into the host plant. एक टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट इंटरसेल्युलर माइसीलियम विद हॉस्टोरिया। अब इसमें क्या होता है कि स्पोर फॉर एग्जांपल कोई फंगल स्पोर है, जर्मिनेट हो गया ऑन द प्लांट बॉडी, एंड इसी प्लांट बॉडी में जर्मिनेट हो गया, फिर ये जो माइसीलियम है ये अंदर घुसेगा डायरेक्टली थ्रू द सेल वॉल, एंड ये सेल वॉल के अंदर घुसेगा, फिर ये माइसीलियम जो फैलता है विद इन द इंटरसेल्युलर स्पेसेस। ये इंटरसेल्युलर स्पेस जो होते हैं विद इन द सेल जो स्पेस होती है इनमें फैलता है, एंड देन आफ्टर जो माइसीलियम है ये हॉस्टोरिया प्रोड्यूस करते हैं दैट पेनिट्रेट इनसाइड द सेल्स। जो सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर ये हॉस्टोरिया घुस जाते हैं। सो इसको बोलते हैं डायरेक्ट इंटरसेल्युलर माइसीलियम विद हॉस्टोरिया। एक और टाइप है इसमें जिसको बोलते हैं डायरेक्ट विद एप्रोसोरियम पेनिट्रेशन पैग एंड इंटरसेल्युलर माइसीलियम। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, एक स्पोर है, ये जर्मिनेट हो गया, इसने एक जर्म ट्यूब बनाया जिसको व्हाट इज डिनोटेड बाय ए। अब जैसे जर्म ट्यूब बन गया, इसके बाद एक स्ट्रक्चर बनाता है दैट इज कॉल्ड एप्रोसोरियम। ये जो एप्रोसोरियम है, एप्रोसोरियम आगे बढ़ बढ़ के एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम बोलते हैं पेनिट्रेशन पैग। अब पेनिट्रेशन पैग जैसे ही आगे बढ़ता है, इट कैन पेनिट्रेट डायरेक्टली इन द सेल्स, एंड इसके बाद फिर ये माइसीलियम बनाता है। सो दिस कॉल्ड डायरेक्ट पेनिट्रेशन विद एप्रोसोरियम पेनिट्रेशन पैग एंड इंट्रासेल्युलर माइसीलियम। मैं फिर से दोहराऊंगा, देयर आर डिफरेंट ways by which the pathogen can directly penetrate into the host plant body. Number one is direct with Hostorium. In this case, the spore it produces Hostoria, but the mycelium it is there is superficial mycelium which lies outside the plant host, and then the Hostoria are produced by the spore or the fungus itself, which penetrates the plant body. Number second is where the direct penetration occurs, but the spores, the mycelium is formed in the subcuticular region. That is the space between the cell wall and the outer cuticle. This is called direct subcuticular only. Number third is direct of the number third method of direct penetration is direct intercellular mycelium, where the mycelium it covers the intercellular regions of the host plant tissues. Number fourth is direct intercellular mycelium with haustoria. Here, the mycelium it is formed, although it is formed within the intercellular spaces, but from this mycelium, haustoria arises, which enters inside of the cells of the plant body. And the last one is where the penetration occurs via the aprosorium with the help of penetration peg and intercellular mycelium. Here, the spore gets germinated, it forms a germ tube, then a knob-like structure is formed that is called aprosorium. The aprosorium it produces pointed device called as penetration peg. Penetration peg helps us in the invasion of the plant body, and once it penetrates the plant body, then after the mycelium is produced, which is intracellular, which is not uh, within the cells but inside it. It can penetrate even the inside of the cells of the host tissue. Now the second is indirect penetration. Indirect penetration occurs through some pores or through the wounds. The first one, uh, this method of indirect penetration is through natural openings. There are different openings which are present in the plant body, and through these openings, the pathogen can penetrate. So it is also type of indirect penetration. Number first here is the stomata. We know the stomata are the natural openings. ये नेचुरल ओपनिंग्स होते हैं यूज फॉर गैसेस एक्सचेंज या ट्रांसपिरेशन में हेल्प करते हैं, एंड दे आर मोर इन नंबर यूजुअली ऑन द लोअर लिप सरफेसेस। अब ये एंड वी आल्सो नो दैट दिस स्टोमेटा दे आर ओपन इन द डे टाइम एंड आर मोर और लेस क्लोज्ड एट नाइट। अब बहुत सारे ऐसे पैथोजेन्स हैं which can enter the host plant through the stomata. For example, bacteria. Bacteria, if the bacteria are present in a film of water over stomatal opening, अगर ये stomatal opening के ऊपर film जो water film है उसमें अगर bacteria होंगे, they can
easily swim through it and reach the substomatal cavity where they can multiply and start infection. मैं ये कह रहा हूँ कि जो पहला है पेनिट्रेशन, indirect penetration through natural openings, and पहला इसमें आता है स्टोमेटा. Stomata, we know these are the openings present on the leaves mostly, and बहुत सारे बैक्टीरिया. अब इनमें जो स्टोमेटा होता है इसमें एक फिल्म ऑफ वाटर होती है कभी कभी ओवर द स्टोमेटल ओपनिंग्स. अब इसमें अगर बैक्टीरिया होंगे तो दे कैन इजीली स्विम थ्रू इट, इजीली घुस सकते हैं इसमें. अब हमें पता है कि स्टोमेटा के नीचे एक सब स्टोमेटल कैविटी होती है, वहां पे वो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं एंड दे कैन स्टार्ट इन्फेक्शन ओवर देयर. सो दिस इज इन केस ऑफ बैक्टीरिया. इसी तरह फंगल स्पोर्स भी होते हैं. इट कैन दे कैन आल्सो जनरली जर्मिनेट on the plant surface and germ tubes may grow through stomata. अब बहुत सारे फंगल स्पोर्स ऐसे भी होते हैं जो जर्मिनेट के लिए पानी की जरूरत होती है, एंड वो क्या करते हैं, जैसे ही उनको पानी मिल गया तो ये जर्म ट्यूब जो बनाते हैं ये एंटर होते हैं प्लांट होस्ट में थ्रू दिस स्टोमेटा. इसी तरह अभी हम एप्रोसोरियम की बात करते हैं. अब एप्रोसोरियम जो होता है, कभी कभार क्या होता है कि जो जर्म ट्यूब बनते हैं फ्रॉम द एप्रोसोरियम, ये इजीली घुस सकते हैं और एक स्टोमेटा के थ्रू घुस सकते हैं इसमें. तो बहुत सारे ऐसे फंगस भी होते हैं जो क्लोज्ड स्टोमेटा के थ्रू भी घुस सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप पक्सीने ग्रैमिनिस ले लीजिए, जिससे रस्ट डिजीज होती है इन वीट, स्टेम रस्ट जिसको हम बोलते हैं, वो भी पेनिट्रेट हो सकती है थ्रू द स्टोमेटा. सो दिस इज द केस ऑफ स्टोमेटा. अनदर इज लेंटिकल्स. अब लेंटिकल्स क्या होती हैं? दीज आर द ओपनिंग्स, चाहे वो फ्रूट हो, स्टेम हो या ट्यूबर्स हो. अब इनमें थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं. ये जो लेंटिकल्स होते हैं इनमें लूजली कनेक्टेड सेल्स होती हैं. अब लेंटिकल्स किसके लिए होते हैं? ये होते हैं पैसेज ऑफ जो एयर का जो कंडक्शन होता है इसके लिए ही होते हैं लेंटिकल्स. जो लेंटिकल्स होते हैं ये फ्रूट्स में हो सकते हैं, स्टेम्स या ट्यूबर्स में, इवन ऑन द बार्क ऑफ द प्लांट बॉडी. ये यूजुअली होती है फॉर द गैसेस एक्सचेंज एंड थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं टू द पैथोजन एंट्री. लेकिन कभी कभार क्या होता है कि लेंटिकल्स के थ्रू भी पेनिट्रेशन हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोमाइसिस की बात ले लीजिए. वी हैव गॉट एरवीनिया होता है हमारे पास. अब ये जो ऐसे या कोई जर्म ट्यूब या हाइफी ऑफ इन्वेडिंग फंगे हैं, ये भी घुस सकते हैं थ्रू द लेंटिकल्स. तो लेंटिकल्स के थ्रू भी बहुत सारे ऐसे पैथोजेंस हैं जो घुस सकते हैं. सो इट इज आल्सो ए टाइप ऑफ indirect penetration through natural openings. And तीसरा जो natural type of natural opening होती है that are called as hydrathodes. अब hydrathodes जो होते हैं ये small pores होते हैं which are mainly present at the margins or tips of the leaves. आपने पढ़ा होगा गटेशन के बारे में. दे आर रिलेटेड एसोसिएटेड विद द गटेशन. ये स्मॉल पोर्स होते हैं. जब रूट प्रेशर के थ्रू पानी लॉस होता है जिसको हम बोलते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट, जिसको हम बोलते हैं गटेशन. गटेशन होता है थ्रू टाइनी पोर्स व्हिच आर प्रेजेंट अलोंग द मार्जिन्स और द टिप्स ऑफ द लीव्स. अब जो जो ये पोर्स हैं जिनको हम बोलते हैं हाइड्रोथोड्स, तो हाइड्रोथोड्स जो है ये भी एक दे कैन आल्सो एक्ट एज अ वे फॉर द इनडायरेक्ट सॉरी फॉर द डायरेक्ट पेनिट्रेशन फॉर द इनडायरेक्ट पेनिट्रेशन बाय द प्लांट पैथोजेंस. इनमें एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जैसे ब्लैक रॉड ऑफ कैबेज है जो जेंथोमोनास करते हैं. वो क्या करते हैं? वो इन्हीं पोर्स के थ्रू प्लांट बॉडी में घुसते हैं. इसकी एग्जांपल एक और है अर्वीनिया एमेलोवोरा. ये क्या करता है? ये ब्लाइट ऑफ एप्पल करता है, ये ब्लाइट ऑफ पियर करता है. एंड ये भी क्या करता है? ये भी इन्हीं हाइड्रोथोड्स के थ्रू ही घुसता है. सो मैं फिर से दोहराऊंगा. there are some indirect penetration ways by which a pathogen can penetrate the host plant. Number first is indirect penetration through natural openings. It can occur through stomata, lenticles, and hydrathodes. जो second वाला indirect method है, so वो होता है through wounds. So बहुत सारे almost all bacteria, बहुत सारे fungus
एंड बहुत सारे वायरसेस इवन वायरस जो होते हैं दे कैन एंटर इन द होस्ट प्लांट थ्रू वेरियस काइंड्स ऑफ वाउंड्स। इसी तरह बहुत सारे जो वेक्टर ट्रांसमिटेड जो पैथोजेंस होते हैं, जैसे वायरसेस होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, या फास्टिडियस वैस्कुलर बैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं रिकेट्सिया लाइक ऑर्गेनिज्म, या कुछ प्रोटोजोआ, ये जो है ये वेक्टर के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। लेकिन जो वेक्टर्स होते हैं या इंसेक्ट्स होते हैं ये इन्हीं के थ्रू, जो वाउंड्स हैं उनके थ्रू ही प्लांट बॉडी में घुस सकते हैं। सो ये जो वाउंड्स हुए हैं ये बहुत टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ओपनिंग है, फंगस की वजह से कोई ओपनिंग बन गई, कोई वाउंड बन गया, एंड उसके थ्रू ही फिर आगे बाकी जो पैथोजन है इन्वेट कर सकते हैं। या कोई क्रैक हो गया बिटवीन द मेन एंड लिटिल रूट्स जो होते हैं, इनमें अगर नेचुरली कोई क्रैक है, वहां पे एक वाउंड फॉर्मेशन होती है, उनके थ्रू भी कोई प्लांट पैथोजन घुस सकता है एक प्लांट बॉडी में। सो दीज आर द indirect ways of the penetration by the plant pathogens in the plant body. So फिर से मैं दोहराऊंगा आज का लेक्चर, यू प्लीज लिसन केयरफुली। आज का जो लेक्चर था इट वाज अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज इन प्लांट्स। मैंने ये कहा कि a plant becomes disease in most cases when it is attacked by a pathogen, but for this two components are necessary, that is we must come in contact and interact. Number one is plant pathogen, number second is host plant, and the third important factor which plays the important role in the interaction of plant pathogen and host and then the development of disease is the environmental factor. When the three are taken into consideration, the interaction of the three components is often visualized as a triangle, what we call as disease triangle. Then a disease, in every infectious disease, a series of more or less events occur in succession and leads to the development and perpetuation of disease. These steps or these events, they are termed as the disease cycle. This disease cycle, it consists of different steps. For example, the disease step, it includes the penetration, infection, reproduction, etc. The first is stage in the development of a disease is the landing or arrival of inoculum. The inoculum may come to the host plant passively by wind, water, and insects. Now the penetration phenomena. First, before penetration, the pathogen is attached with the host. It may be attached with some of the exudates which are released by the inoculum. Once it gets attacked with the host, then there is penetration of the pathogen inside the plant body. This penetration is of two types. It may be direct penetration or it may be indirect penetration. The direct penetration, it occurs through different ways. One such type is where a spore gets germinated in forms the germ tube, then there is formation of aprosorium, and then aprosorium forms the penetration peg. And second is indirect penetration. It occurs, it may occur through wounds or through natural openings. In case of natural openings, it can, the penetration can occur through the hydatodes, it can occur through stomata, or it can occur through the enticles. And the second important way of indirect penetration is through the wounds. So this was all for today. अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, he or she may ask me. अगर कोई क्वेश्चन है तो आप बता पूछ सकते हैं. Really, thank you. Inshallah, we'll meet tomorrow again for the next lecture.